happens with you कि ढेर सारे फॉर्मूले याद करने के बाद भी राइट टाइम पे और राइट जगह पे आप फॉर्मूले अक्सर भूल जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और एग्जामिनेशन हॉल में अगर गलती से बैठे हैं तो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं आ रहे, देन दिस क्लास इज फॉर यू माय डियर किड्स, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूला. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Here we go. So this is formula cheat sheet, and we are going to revise these chapters: polynomials, quadrilaterals, circles, surface area and the volume and the probability. Oh no, ma'am, you are befooling us. Where is the formula in polynomials? There is a lot of formulas we have. Lot of we have algebraic identities. There are formulas. Okay, ma'am, in quadrilaterals, where are the formulas? We don't have any formulas, but we have lot of properties. So I'm going to make you revise all the properties. Okay, let's talk about the circles. Circles में formula का है. Again, we have a properties in that. And if we talk about the surface area and the volume, we have lots of formulas over here. So let's start the chapter. Let's start the session of formula cheat sheet. Here we go with the first thing. First of all, I just want to introduce myself. I'm Jyotsna Sharda and I have a double master's और मेरे को ढेर सारा experience है. So you are in the safe hands and we are just going to revise the formulas. So nothing to worry. Okay, so here are the some batches of the Vedantu. As we both are at the Vedantu platform, this is Vedantu Infinity, Maths Infinity channel. And here are the few batches which are going to start. You can see 14th Feb is the batch next, for the 9th class. Now the kids are saying, ma'am, we have exams in the ninth class in some few days, 2-3 days, or for a week we have an exams. So guys, this batch is not for you. This batch is for those kids who has an exam in March. जिन बच्चों के एग्जाम्स मार्च में है उनके लिए है ये बैच. I will show you the price list, what you have to pay for the 1 month and what you are getting into it. चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं. So if you are going into the sessions, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स इन्फिनिटी चैनल पे, और किसी भी वीडियो के नीचे अगर आप नीचे करके देखेंगे, मैं छोटू हो जाती हूँ, शो मोर पे जाएंगे, वहां पे जाके आप देखोगे सीबीएसई टर्म टू फुल सिलेबस. इसको क्लिक करना, क्लिक करके आपके पास आएगा ऐसा कुछ. ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा जस्ट 900 रुपीज. 900 रुपीज में आपको मिल रहा है पूरे 1 मंथ का. आप पूरे 1 मंथ के लिए यहाँ पे आइए फ्रॉम फेब्रुवरी टू मार्च. और अगर आपके मार्च के एग्जाम्स है, यू आर गेटिंग ऑल द 6 सब्जेक्ट्स: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश and social studies. So we are going to make you revise all these subjects and in all the live and interactive session. हमारे जितने भी sessions होते हैं वो live होते हैं. But after the live class, we make it recording so that if you miss the class, you will get the recording. Along with that, you will get notes as well as assignments. आपको notes भी मिलती हैं, आपको assignments भी मिलते हैं. You will get a पका पकाया schedule just like this. This is my schedule, 18th, 19th, this is my schedule. So you will get the schedule, so you don't need to remember all these things. And if you want the recordings, here also upcoming ko pass mein karo, you will get all the recordings. Here's the replay and the get notes. So you will get notes also along with the recording. You can see if I click this, I'm getting now notes. These are the notes of statistics and this is of the 10th class. So just like this, you are getting notes. And if you go for the recording, okay, in this session only, let's go to the recording thing कि देखते recording कैसा होता है. मैम झूठ तो नहीं बोल रही, no way. So yeah, let's see the probability. So again, the probability in the replay, you can see ma'am is teaching something. This is my classes. So let me mute myself. This is the recording of mine. तो आप इस पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग देख सकते हो. And you can see I unmute and uncam some kids also over here. There is some girl, you can see there are two girls who are talking to me. They are asking me some of their doubts and I'm giving answers. So that's how our class works. It's a multi-teacher, class. Along with me, there is one more teacher who is clearing the doubts as well as we are, making their concepts more strong. So चलिए चलते हैं वापस अपनी क्लास में, देखते हैं what to do over here. Here is our class. Here it is. So if you are exams in the March, please come. And for the 10th class, your exams are on the 26th April. So you have ample time. 900 rupees is nothing. You just have to pay the 900 and you're getting all the subjects for the month. It's
more than enough. So for the CBSE 10th class, you just have to go again in the pro section and you just change the class. You will get some one class at the 21st February also. New class, new batch. So come on. Chaliye, let's go to back to the our thing. So if you like the session, if you like this formula cheat sheet, this I'm getting this session because of your recommendations. You asked me, ma'am, we need a formula cheat sheet. एक बार फटाफट से सारे formula revise कर दीजिए. So that's why we have a session over here. So come and please like my session, share my session, subscribe my session. Let's start with the polynomials first of all. This is the polynomials. Okay, let's start with the polynomials. We don't have a specific formulas in this. We just have algebraic identities formula, है ना? We have a first of all we should know what is a polynomials. Polynomials क्या होता है, जरा उसको पढ़ते हैं. Poly means many and nomials means term. So any algebraic expressions which has a many terms, if I have one term, is it a polynomial? Yes, it is. So if it's known as a monomial then. Monomial has one term. Binomial has a two terms. Trinomial has a three terms. Polynomial has a many terms. As these are also known as a polynomials, these are the type of the polynomials on the basis of terms. Okay, and then we have a types of the polynomials on the basis of degree. Sometimes in some polynomials we can see there are some parts, there are some degrees of the variables. Now the polynomial can be in x, can be in y, can be in z, can be in p, t, s, all the alphabets but in the lower case, not in the upper case, right? So you can have the polynomial in any variable. For example, u square plus 1, this is also polynomial, or z square minus 1, this is also polynomial. So these are the polynomial in some other variable. So if you have these things, then also it's fine. Now, when we call it as a linear, we call it as a linear when it has a maximum power 1. Degree means maximum power of a polynomial. So that is 1. Here the maximum power is a 2. So it's quadratic. When the maximum power is a 3, it's cubic. When the maximum power is a 4, it is biquadratic. And I think biquadratic is a new thing for you, but linear, quadratic, and a cubic. It is already, in the last class also, the junior class also. You might have read somewhere. Now, what is the zero of a polynomial? This is also very interesting concept. Zero of a polynomial is a polynomial which makes that term which makes the polynomial zero. For example, if you have a term 3x minus 6 is equal to 0. So we can easily say if you substitute x is equal to 2, you will get a 0. So 2 is the value of an x which makes this polynomial 0. Okay? So you can find it like this, if you have a number like 2x minus 9 is equal to 0, you just equate it equal to 0, you will get a 0. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है, उसको 0 के बराबर कर दो और x की वैल्यू निकाल लो. That is what the value of that polynomial. So यही उस polynomial का 0 होता है. तो 0 of a polynomial जरूरी नहीं है 0 ही हो. जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला, in this polynomial 0 is 2. In this polynomial 0 is 9 by 2. तो polynomial का कोई भी 0 हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 0 ही हो. 0 में भी 0 of a polynomial, और ऐसा भी हो सकता है भैया polynomial का 0 0 ही हो. कैसे? Okay. If I ask you what is the 0 of this polynomial 9x? 0. क्योंकि x का 0 वैल्यू ही इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है, और कोई वैल्यू नहीं. So the value of x as a 0 will makes it 0. Next, every linear polynomial has a 1 and just only one 0. हर linear polynomial का 0 सिर्फ एक ही होता है. Actually, number of zeros depends upon the degree. Linear polynomial का एक 0 होगा, जरूर होगा. Quadratic, it has maximum 2 0, minimum हो सकता है इसका कोई 0 ना हो. फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक के लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3. आप जरा बचाओ, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जो उसको 0 बना देगी? अरे बाबा कोई भी नहीं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को तो कोई 0 नहीं बना सकता. तो क्वाड्रेटिक का हो सकता है कोई 0 ना हो. अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0 डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री. लेकिन जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी उसके मैक्सिमम 0 हो सकते हैं. Degree of a polynomial is equal to number of zeros, but these are maximum number of zeros.
चलिए आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि बाय क्वाड्रेटिक है तो आई शुड राइट इट हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जीरोस होता ही नहीं। वो किस केस में होता है? जहां पे पावर आपकी इवन होती है। अगर आपकी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज इन इवन, तो दिस माइट बी द केस कि वहां पे आपके पास जीरो क्या आए, कुछ भी ना आए। सो ऐसा भी होता है। एज आई गिव यू वन एग्जाम्पल, यू कैन ट्राई इट वंस अगेन। एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखो, भैया इसका जीरो निकालो, मैं भी देखती हूँ क्या जीरो है। और अगर आप सक्सेसफुल हुए इसका जीरो निकालने में, वो भी रियल नंबर, वो भी रियल नंबर, तो give me answer in the comment box. I will reply you over there. So here are some identities in this chapter which is very important to remember. X plus y का whole square, that is x square plus y square plus 2xy. X minus y का whole square, x square plus y square minus 2xy. X square minus y square, x plus y into x minus y. X plus a into x plus b is x square plus a plus b into x plus ab. तो ये सब क्या है फॉर्मूले यार, यू रीड इट वंस, नहीं याद होते ना। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि मैम ये याद ही नहीं होते। आई ऑलवेज गिव यू सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सो द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज राइट डाउन ऑन द पेपर, एक कागज पे लिख लो भाई, और इसको कहीं ना कहीं दीवारों पे लगाओ। अब दीवार का तो पेंट खराब होता है, तो क्या करने का, दरवाजे पे लगा दो। दरवाजे का यार पेंट खराब नहीं होता, या कपबोर्ड पे लगा दो, तो वहां पे सेलो टेप के साथ चिपका दिया जाए। गम मत लगा देना वो लिक्विड वाली यार, सारा खराब ही कर लो पेंट और पिटाई मेरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने उसको बड़े प्यार से सेलो टेप से चिपका देना, उतर जाता है। आई यूज टू डू दिस। तो आप उस पर चिपका दीजिए अपने कमरे के दरवाजे पे, मम्मी डैडी के कमरे के दरवाजे पे नहीं। और उनको याद नहीं करना, तुमको याद करना है। सो प्लीज बिहेव, थोड़ा सेंसिटिवली बिहेव कीजिए, ठीक है। पता चला कि मॉम डैड कल को मेरे को इस वीडियो के नीचे बोल रहे क्या कर रही है यार, पूरा घर गंदा कर दिया। बच्चों तो सारे हमारे कमरे के सारे दरवाजे भर दिए यार। अपने जिस रूम में आप सोते हैं उसका दरवाजा आप उस पे लगाओ अपना पोस्टर इन फॉर्मूलाज का। चलिए, सो वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज अ ट्राइनोमियल, इट हैज थ्री टर्म्स। तो इसको जब खोलोगे यू गॉट सिक्स टर्म्स, 3 into 2 6, या तो आप इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फॉर्मूलाज आर न्यू। मुझे लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दीज आर द फॉर्मूलाज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड। ये तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं इन योर 8th क्लास। यो, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री फॉर्मूलाज यू हैव स्टडीड इन योर 8th क्लास। लेकिन फिफ्थ फॉर्मूला, फोर्थ भी पढ़ रखा है। ये वाले जो दो फॉर्मूलाज है ये आपने शायद नहीं पढ़े, तो ये आपके लिए थोड़े नए हैं। तो ट्राई कीजिए कि इनको बार बार देखो, ये आपको याद होंगे डेफिनेटली। दीज ऑल फोर यू रिमेंबर इट। बट ये जो नए फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको भूल सकते हैं, क्योंकि आपने इसका एक बार भी एग्जाम नहीं दिया। एक बार एग्जाम दे दोगे ना आपको याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रटना है, कैसे बार बार देखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने हैं। और हर बार आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, यू जस्ट रिकॉल इट एंड अप्लाई इट, सी योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपका आंसर्स भी सही आने शुरू हो जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर। दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम्स। कुछ याद है आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करती हूँ, जैसे कि x माइनस ए को किसी भी पॉलिनोमियल, अब ये लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हो, जब इसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ a रिमाइंडर आता है। मतलब x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दो तो p ऑफ a क्या आता है, रिमाइंडर। आपको इसमें याद क्या रखना है, डिवाइड करना है लीनियर से, और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो। इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, इक्वेटेड इक्वल टू जीरो, यू गॉट x इज इक्वल टू a, तो ये इसका जीरो है। इसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो और अगर रिमाइंडर आ जाए जीरो, इट जस्ट लाइक दैट कि आप किसी 12 को डिवाइड किया 3 से, है ना, रिमाइंडर आ गया जीरो, इसका मतलब 3 क्या फैक्टर है 12 का। सिमिलरली अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जीरो आ जाए,
तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। तो यही है इसमें फैक्टर थ्योरम में कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आया, जो कि क्या है, रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर इज p ऑफ a, याद ये रखना है, रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a है, और ये a क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका 0 ही a है। ध्यान दीजिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका जो 0 होगा वो a होगा। तो ये भैया रिमाइंडर आ गया, और फैक्टर थ्योरम में अगर ये 0 के इक्वल हो गया, दैट मींस x माइनस a उस px का क्या हो गया, फैक्टर। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट रिमाइंडर 0, तो आप बोलते हो कि 3 12 का फैक्टर है। यहीं पे अगर मैं 5 रखूं तो आप कहोगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। यू डू अंडरस्टैंड नाउ। चलो, तो ये तो थे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलिए आगे चलते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, प्लीज 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 लाइक कर दो। सिर्फ लाइक दिल से नहीं करना है, यहाँ पे अपना प्यार दिखाना भी है मुझे, तो जल्दी से सेशन को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स इज नाउ ज्योमेट्री, वी हैव डन जस्ट अलजेब्रा थिंग। और अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स बहुत बड़ा चैप्टर। आप इसके स्कोर्स देखिए, जाके सीबीएसई वेबसाइट पे चेक करो कि पॉलिनोमियल्स नहीं लिखा होगा, वहां अलजेब्रा लिखा होगा। इट हैज द हाईएस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कितने मार्क्स हैं, बट इसके सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के हैं। तो भैया पॉलिनोमियल्स को बढ़िया तरीके से कर लो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रिलेटरल्स। लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज इन क्वाड्रिलेटरल्स। आइए देखते हैं सो कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, यार ये तो सबको ही पता होगी। क्वाड मीन्स 4, lateral means side, so quadrilaterals is that geometrical figure which has 4 sides. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। that is the properties of a quadrilateral, and this also everybody know. Quadrilaterals, 4-sided figure. It has a 4 sides, 4 vertices, 4 you can say that angles, है ना, और 2 diagonals होते हैं इसके। सिंपल है, 2 diagonals होते हैं, और इनके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। So that's what quadrilaterals. Okay, quadrilaterals बहुत तरह के होते हैं, and if we talk about the basic ones, if we talk about the standard ones जिनके ऊपर हम काम करते हैं, तो वो कुछ है, kite, trapezium, and the last one is, yeah, it is parallelogram. ये 3 तरह के होते हैं। अब अगर मैं kite की बात करूं, this is the same kite which you do fly in these days. बसंत पंचमी आके हटी है, तो बहुत बच्चे इस वक्त काइट उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सही मौसम है काइट उड़ाने का। तो काइट जो आप आकाश में उड़ाते हो, बिल्कुल वही शेप होती है, ऊपर वाली 2 साइड्स इक्वल और नीचे वाली 2 साइड्स इक्वल, ओनली देन यू कैन मेक अ काइट। या स्क्वायर फिगर होगी तब भी काइट बन जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द काइट इज, इनके जो डायगनल्स होते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, और छोटा वाला डायगनल इक्वल होता है, मतलब इक्वल इक्वल कट होता है। ये चीज, अगर लेट मी चेंज द कलर, ये जो चीज है इसके इक्वल होती है। अगर मैं एओ बोलूं तो एओ इज इक्वल टू ओसी, बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को इक्वल इक्वल कट कर देता है, एंड देयर एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो दिस इज नोन एज अ आइट। यार कुछ कुछ बिल्ली की तरह लग रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे आइस बना दूं, नहीं चूहे की तरह लग रहा है। सो दिस इज जस्ट ए काइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम कौन सी फिगर होती है, यार कोई भी कोऑर्डिनेटर ले लो, अगर एक पेयर, एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो गया ना उसका, तो वो ट्रेपीजियम कहलाता है। कोई भी एक पेयर, कोई भी ट्रेपीजियम ले लीजिए, कोई भी कोऑर्डिनेटर ले लीजिए, अगर एक, सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, क्योंकि इसमें कोई 2 साइड्स पैरेलल होती हैं ऑपोजिट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये लाइन इसके एक्सटेंड कर दी मैंने यूं ही, है ना, ये लाइन भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब ध्यान से देखना क्या बन रहा है, पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो वी हैव वन प्रॉपर्टी, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते ना तुम एंगल्स की, गलत होती है ये, यू शुड राइट द होल एंगल्स। तो यहाँ पे भी अगर हम इस डायग्राम में देखें, दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दिस DA इज अ ट्रांसवर्सल, ये बन जाएंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D
एंड एंगल सी प्लस एंगल बी बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री की होता है, ये भी, क्योंकि उधर भी इंटीरियर एंगल्स आपके क्या बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री ही होता है, राइट। सो व्हाट वी हैव इन ट्रेपेजियम, सबसे पहले जस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट, एंड एडजेसेंट एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं और डायगोनल्स इसके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कुछ सेम रेशियो में, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेपेजियम। नाउ लेट्स कम टू द पैरेललोग्राम। अगर आपके स्कूल मतलब आपके जो किताब है एनसीईआरटी और उसमें अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की, तो पैरेललोग्राम ही वहां पे रॉक करता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ हीरो फिगर, क्योंकि पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पैरेललोग्राम के नीचे भी तीन एक किस्में होती हैं, यू कैन से we can say parallelogram has three can say types. One is yes, it's a rectangle. एक तो होती है इसकी रेक्टेंगल, दूसरी होती है इसकी रोम्बस, एंड थर्ड वन इज स्क्वायर. सो दीज आर द थ्री टाइप्स विच द पैरेललोग्राम हैज. ये इसकी तीन टाइप्स होती हैं. लेकिन उससे पहले पैरेललोग्राम की बात करें, ये भी एक अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग फिगर है. ट्रेपेजियम में क्या होता है याद है, सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं. These are also parallel lines, these are also parallel lines. So in the parallelogram we have a both pair of opposite sides are parallel to each other. So parallelograms have lots of properties. What the properties parallelogram have? First of all, opposite sides क्योंकि पैरेलल होते हैं, आप कभी बना के देखिए फिगर, कोई भी ऐसा फिगर जिसमें दोनों पेयर पैरेलल हो, आपको पता चलेगा कि दोनों ऑपोजिट पेयर इक्वल भी होते हैं. So in a parallelogram, both pair of opposite sides are equal and both sides of opposite sides are parallel. क्योंकि इसको parallelogram क्यों कहते हैं? Parallel, parallel से बना parallelogram, तभी इसकी दोनों पेयर parallelogram होती हैं. Equal भी होती हैं, parallel भी होती हैं, and also इनके opposite angles भी equal होते हैं. तो दो चीजें equal बोली मैंने, कौन कौन सी? Opposite sides, opposite angles, ठीक है. और opposite sides क्या होती है? Parallel. और तीसरी चीज क्या हुई फिर? इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल इक्वल कट करते हैं. यू कैन सी PE इज इक्वल टू ET एंड RE इज इक्वल टू EQ. तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर कट करते हैं. ओके, सो वी हैव ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. नाउ अगर मैं बात करूंगी रेक्टेंगल की, रोम्बस की या स्क्वायर की, इन तीनों इनके बच्चे हैं, मतलब पैरेललोग्राम के ही टाइप्स हैं. तो बेटा जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में है, जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में है, वही रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और रोम्बस में भी है. इन तीनों में वो सभी प्रॉपर्टीज हैं. चलिए तो रेक्टेंगल को देखते हैं. रेक्टेंगल में देखें, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम. यू कैन सी वी जस्ट ऐड ऑन वन ऑफ द प्रॉपर्टी. और कौन सी प्रॉपर्टी हमने ऐड की है कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में टेढ़ी फिगर थी, हमने सीधी कर दी. रेक्टेंगल में सभी एंगल्स हमने इक्वल कर दिए, and that too 90 degree because they are straight. So angle A, angle B, angle C, angle D all are 90 degrees. सभी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. Opposite sides equal होंगे, opposite sides parallel होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है यार, वो तो होगा ही. लेकिन इसकी और एक मजेदार चीज होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट फिगर होती है, जितनी भी स्ट्रेट फिगर होंगी 90 डिग्री के जो एंगल्स बनाएंगी, ऑल द फोर, यार उनके डायगोनल्स क्या होंगे? बराबर. लेकिन ये तो पैरेललोग्राम ठहरा. इसके तो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या होगा? यस, ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे. ऑल आर इक्वल. और क्योंकि ये इक्वल हो गए हैं, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स बने हैं चारों के चारों ट्राइंगल्स क्या होंगे? आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. यानी कि OD is equal to OC, so ODC becomes isosceles. AOD में AO is equal to OD, so it becomes isosceles. So all the four triangles are isosceles because इनकी जो सभी diagonals हैं वो आपस में सब equal हैं. दो ही diagonals हैं, but they are bisecting each other. ठीक है, टुकड़े भी आपस में equal हैं. चलिए आगे चलते हैं. Now let's go for the rhombus. रोम्बस की बात करें, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी सभी साइड्स क्या होती? इक्वल.
सो इट इज ऑल द साइड्स इक्वल, सभी इक्वल होती है, यस। और इसकी एक प्यारी सी एक प्रॉपर्टी है जो सभी को पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल है। वो तो होगा ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। So that is the property of a rhombus. This is the basically property. Let's proceed to the other. That is a square. Square क्या होता है याद है तुम लोगों को? अगर आपने मेरा एक सेशन लगाया हो कोई भी पैरेललोग्राम का, मतलब मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा लिस्ट में। उसमें यार मैंने स्केयर में लिखा हुआ है कि स्केयर क्या होता है? एक सर्व गुण संपन्न बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो हर माँ बाप की एक पुराने जमाने में जो माँ बाप होते थे तपस्या करते थे अच्छी, मतलब मेरी एक अच्छी औलाद हो, एक अच्छा बच्चा। अब तो कहते हैं सारे बच्चे अच्छे होते हैं, अब थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हो गई है। पहले यार थोड़ी रिजिड होती थी, उनको लगता था बच्चा ऐसा होना चाहिए ना, इंटेलिजेंट, खूबसूरत और सभी कहने हमारे मानने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला, सारे गुण। वो गुण पता किसमें है? स्केयर में सारे ही गुण है, इसमें सारे ही गुण है। इस स्केयर में सारी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के, सभी दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, सभी जो ट्राइंगल्स हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। मतलब जो रोम्बस के अंदर है और जो रेक्टेंगल के अंदर है, सारी की सारी क्वालिटीज भाई ये ले गया। जो क्वालिटीज किसी बच्चे में होती, किसी और बच्चे में होती, सारी पकड़ के क्वालिटीज इसके अंदर डाल दी, है ना। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, सब कुछ है इसके पास। तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं जस्ट लाइक अ रोम्बस। ये मतलब जो भी रेक्टेंगल में है, जो भी रोम्बस में है, सब कुछ इसमें है। सो तभी मैं इसको बोलती हूँ सर्वगुण संपन्न बच्चा है। चलो, तो हमेशा याद रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर सिलेबस इज अ मिड पॉइंट थ्योरम। यारो इसको रट लो। इसकी जो प्रूफ मैंने भी करवाया था क्लास में, आपको स्कूल में भी करवाया गया होगा, आपने यहाँ यूट्यूब पे भी किया होगा। यार ये जो प्रूफ है ना इसका, ये कई बार पेपर में आ जाता है, कुछ ऐसे आता है स्टेटेड प्रूफ। स्टेट भी करो और प्रूफ भी करो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो यार इसको अच्छे से कर लो, ठीक है, एक दो बार लिख के देख लो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में आ जाए। तो मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है किसी भी ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल, जब मैं बोल रही हूँ किसी भी ट्राइंगल, तो वो स्केलन भी हो गया, इक्विलेटरल भी हो गया, आइसोसेलेस भी हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, उनकी कोई भी दो साइड्स हो, एनी एनी कोई भी दो साइड्स, यहाँ पे डी और ई ली हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। कोई भी दो साइड्स ली, ये वाली ली या ये वाली ली या ये वाली ली, कोई भी दो साइड्स ले ली, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब वो जो लाइन बनती है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द बेस। और इसी तरह से जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी एक्सरसाइज 8.2 देखें, इट इज ऑल बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम एज वेल एज इट्स कॉन्वर्स। सो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिए, लिख के कीजिए। और एक्सरसाइज जो 8.2 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन उसका बार बार आया हुआ एग्जाम्स में, अच्छे से करके जाना along with एग्जाम्पल्स। चलो फिर से एक बार याद दिलवा दिया जाए, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, बहुत से बच्चे यूट्यूब में बीच में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते, कहीं से भी देख रहे होते वीडियो। अरे यार लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, हाँ। चलो जी, अब आ गया हमारे पास एक बड़ा ही ब्यूटीफुल चीज, सर्कल्स। Circles is a very interesting topic, very interesting. Circles has a lot of, they have a lot of, we can say that elements, सेगमेंट भी होता है, सेक्टर भी होता है, टेंजेंट भी होता है, बहुत कुछ होता है। और हमें पता है कि हमको क्या चाहिए। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं, सर्कल्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्क और एक दैट क्या कहते हैं इसको, सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन शब्द हैं जिनके बारे में तुमको पता होना चाहिए। आर्क मैं बता देती हूँ। आर्क ये रही, सरकमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा, उसको हम बोलते हैं आर्क। कॉर्ड, कॉर्ड कोई भी लाइन जो सर्कल को कोई दो पॉइंट्स पे मीट करती हो। लो जी, दिस इज अ कॉर्ड। सेगमेंट, आर्क और कॉर्ड, इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये तीन चीजें ये रही। सेंटर सबको पता है, रेडियस सबको पता है, डायमीटर सबको पता है, एरिया सबको पता है, पेरीमीटर सबको पता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच वी इंट्रोड्यूस इन द 9th क्लास, आर्क हो गया, सेगमेंट हो गया या कॉर्ड हो गया।
इन तीनों चीजों के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्ड रिलेटेड प्रॉपर्टी और आर्क रिलेटेड प्रॉपर्टी आर सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये पहली प्रॉपर्टी कोई देख लो, अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स हो और दोनों इक्वल हो तो ये कॉर्ड्स हमेशा सेंटर पे इक्वल इक्वल एंगल्स बनाती हैं। मैंने क्या बोला? इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स। और सबटेंड्स क्या है? दिस इज ऑल्सो न्यू वर्ड विच इंट्रोड्यूस्ड इन द 9th क्लास। ये 9th क्लास की ज्योमेट्री में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना, टू मेक, राइट? सो सबटेंडेड, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो बराबर कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती हैं। और इसका कॉन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू है। अगर इसका कॉन्वर्स करें कि ऐसी कोई कॉर्ड्स जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो इक्वल होंगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अ परपेंडिकुलर टू द बाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सबके प्रूफ भी बड़े आसान है। सारे प्रूफ्स कॉन्करेंसी से हो जाते हैं। जब मैंने करवाया था तो मैंने कहा बच्चे ही कर रहे थे अपने आप। हाँ, चलिए ये करते हैं। इसमें बहुत है। एक कॉर्ड है और सेंटर से मैंने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। सो कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींच दिया। इससे क्या हुआ? कॉर्ड इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी कि AD इज इक्वल टू DB। ठीक है? और अगर AD DB के इक्वल हो तो पक्का सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हर थ्योरम का एक कॉन्वर्स है और वो भी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे कॉर्ड्स अगर छोटी बड़ी हो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अगर कोई कॉर्ड बड़ी है तो वो सेंटर के पास होगी। जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर से दूर होती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। ध्यान से देखो, इसी में देखो। अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं यहाँ पे सेंटर से दूर तो छोटी है। अगर मैं कॉर्ड को सेंटर के पास बनाऊं तो बड़ी है। जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर के पास आती जाती है बड़ी होती जाती है। तो इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, अगर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो भाई वो वैसे भी इक्वल होंगी। equal chords are equidistant from the center. छोटी बड़ी chords are, they are not equidistant from the center, क्योंकि जितनी बड़ी chord होगी उतनी center के पास होगी। लेकिन अगर बराबर chords है तो center से बराबर की दूरी पे है। So that's what we written. ठीक है? एंड कॉन्वर्स भी उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक थ्योरम है विच इज आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा यूज हुई है। अगर आप लास्ट एक्सरसाइज देखो सर्कल्स, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके थ्रू निकलते हैं। ये क्या कहती है? ये कहती है भाई कोई आर्क है BC, एनी आर्क। ये आर्क सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रही है। मान लीजिए सरकमफ्रेंस पे इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? 60। सो दैट्स व्हाट इट सेज। इट सेज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at a center is double the angle made by an arc at any remaining point of the circumference. तो आप ध्यान से देखो, कोई भी और लाइन अगर बनाएंगे, कोई भी और एंगल बनाएंगे, ये 30 डिग्री ही बनाने वाली है। इधर भी 30 डिग्री, इधर सॉरी बाहर चला गया। सो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो सेंटर पे अगर 60 बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? 30 30 30। चलो आगे देखते हैं। So now this is angle in a semicircle. एक तो होती है कॉर्ड। अब ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेमी सर्कल से हो, मतलब बिल्कुल सेंटर से होके जाती है। ध्यान से देखिए जरा इसको। यहाँ पे ये एंगल कितना बना रही है? मतलब ये जो PQ आर्क है ये सेंटर में एंगल कितना बना रही है? 180 डिग्री। सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? हाफ, 90 डिग्री। सिंपल। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब ये देखो, ये भी बहुत आसान है। सेंटर में भैया इसने एंगल कितना बनाया? 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 60 60। और भी कोई ले लेते हैं, एक और ले ली, वो भी कितना बनाएगी? 60। व्हाट आई वांट टू से कि ये जो आर्क है हमारी, जो आर्क है आपको दिखाई दे रही होगी, ये आर्क, मैं इसका नाम देती हूँ, बेनामी सी है, AB आर्क। भाई ये जितने भी एंगल्स बनाएगी ना सर्कमफ्रेंस पे, EFC, जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाएगी सभी का जो एंगल्स होंगे सेम होंगे। 60 60 60 सारे सेम। अच्छा इधर ही देख लो, ये जो आर्क PQ है, अगर यहाँ पे एंगल बनाए तो कितना बनाएगी? सेम, क्योंकि ये आर्क भी तो सेंटर पे 180 बना रही है, तो इधर भी कितना बनाएगी? 90। अरे और बना लो, ये लो एक और बना लो। तो आर्क जो होती है ना सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल्स बनाती हैं।
They make same angles on the circumference. Same arc make same angle on the circumference. और यहाँ पे मैथ्स में क्या कहते हैं? सबटेंड्स, नॉट मेक, सबटेंड्स. तो ये हो गई हमारी थ्योरम्स. अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के ऊपर हो, जिसके चारों वर्टेक्स, सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं साइक्लिक. अब यार इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है. प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो हियर एंगल बी एंड डी सम्स अप टू 180 डिग्री. एंगल ए एंड सी सम्स अप टू 180 डिग्री. और किसी भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो यूं ही बना हुआ, उस क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो डेफिनेटली वो सर्कल के ऊपर ही होगा. ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. तो गाइज मैं फिर से याद करवा दूं, बड़े बच्चे भुलक्कड़ है आजकल के. बेटा अगर आपको सच में सेशन में मजा आ रहा है ना, सच में आपको लग रहा है यार मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ, मैं आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रही हूँ, तो दिल से यार मैंने ये वीडियो बनाया. आई जस्ट वांट दिल से यार लाइक तो ठोक दो, थोड़ा सा मुझे भी खुश कर दो. Okay, so now we are left with the last thing, that is the surface area and volume. इसके तो है ढेर सारे फॉर्मूलाज, ढेर सारी एक्सरसाइज, ढेर सारा आई कैन से दैट मटेरियल, कैलकुलेशंस, बहुत कुछ. तो दिस चैप्टर नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस. वो बहुत सारी चीजें हैं. 3D जितने भी फिगर्स है ना वो सारी इसमें डाल दी गई हैं. एक रह गई है फ्रस्टम जो आएगी 10th क्लास में. पिछले 2 साल से तो वो कट रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड. आई वांट कि अगले साल वो कैंसिल ना हो और आप लोग फ्रस्टम पढ़ पाओ. चलिए वो हम 10th क्लास के लिए छोड़ देते. 9th क्लास के लिए वी हैव ऑल दिस फिगर्स. और बेटा इस चैप्टर को इस क्लास में करके भूल ना जाना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कोई याद नहीं करवाने वाला ये फॉर्मूले, और ये आगे जरूर आएंगे. 10th क्लास में सब कुछ आ रहा है. ये है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज अ वेरी बिग चैप्टर इन 9th क्लास. 10th क्लास में आधा ही हो जाता है. लेकिन फॉर्मूले सारे लगते हैं और कोई टीचर आपको याद नहीं करवाएगा. तो इसमें जो आपके पास फिगर्स हैं, क्यूब भी है, क्यूबॉइड भी है, स्फीयर भी है, कोन भी है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है. ठीक है. तो मेरे को नहीं लगता क्यूब क्यूबॉइड कोई ऐसा भयंकर चीज है जो आपको नहीं आती. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस. क्यूब क्यूबॉइड आप पढ़ते हो, है ना. क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, आपको पता है. क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं? सेम. जैसे कि मैं जिस रूम में बैठी, दिस इज अ क्यूबॉइडल. इसके तो मतलब लेंथ है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है, जिसमें सबको सेम सेम वो क्या होता है? क्यूब. जस्ट लाइक रूब्रिक्स क्यूब. और ये जो आपकी किताब है एनसीईआरटी, ये क्या है? क्यूबॉइडल शेप में. देखो इसका लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है. सो जिसकी विड्थ अलग हो, लेंथ अलग हो, हाइट अलग हो, हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड. तो ये क्या है? क्यूबॉइड. क्यूब, रूब्रिक्स क्यूब इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोन. कोन क्या फिगर होती है? सबको पता है कोन क्या चीज होती है. आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी, सॉफ्टी. ठीक है. या फिर बर्थडे कैप तो सबने लगाई होगी. ये दोनों चीजें सबने की होती हैं अपनी लाइफ में. जो भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं उन्होंने तो, हाई क्लास वाले तो की होती है लेकिन मिडिल क्लास वाले बंदे ने की होती है. सो कोन सबको पता है कैसा होता है. कोन थोड़ा फॉर्मूला है जिसका याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को. कोन और सिलेंडर. अगर मैं क्यूब क्यूबॉइड की बात करूं, क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है उसमें. 6 साइड्स हैं आपकी. ठीक है. एक रूफ है और एक फ्लोर है, 4 वॉल्स है. वॉल्स के एरिया में एल एच आता है बिकॉज हाइट है. और ऊपर नीचे फ्लोर और रूफ में एच नहीं आता, सिर्फ एल बी आता है. सो क्यूब क्यूबॉइड का फॉर्मूला कंपैरेटिवली बहुत आसान है. ठीक है. और हम क्यूब की बात करें वो तो बहुत ही इजी है. क्यूबॉइड में थोड़ा सा मतलब एलबीएच आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत आती है. एक बात मैं आपको कहूंगी, जो वॉल्यूम्स के फॉर्मूले हैं ना, ये एज कंपेयर टू सरफेस एरिया काफी आसान होते हैं, है ना. ओके. एक चीज और याद दिलाती हूँ. जितने आपके कर्व्ड एरिया के फॉर्मूले होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले होते हैं, उसमें ना ज्यादातर में एडिशन नहीं आता, टोटल में एडिशन आता है. याद रखिएगा, टोटल में एडिशन आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में एडिशन नहीं आता. सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के फॉर्मूले में आता है. बाकी देखो सब कुछ सिंगल सिंगल है, सिंगल 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 सिंगल. लेकिन टोटल सरफेस एरिया में देखो इधर भी इतना बड़ा एडिशन है, इधर भी एडिशन है, इधर भी एडिशन है. तो यही थोड़ा दिक्कत देता है. ठीक है. तो ये आपको जो याद करने वाली चीज होती है ना, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होती है, टोटल कोई याद नहीं करता. तुम याद करते तो संभल जाओ, मत याद करो. कोन का टोटल क्या होगा? नीचे का सर्कल ऐड कर दो.
सिलेंडर का टोटल क्या होगा, दोनों सर्कल ऐड कर दो। तो टोटल याद करना तो कोई मुश्किल नहीं है, कर्व्ड याद कर लो बस। क्यूबॉइड की शेप में आपको याद करना है, आपके पास तीन होते हैं क्यूबॉइड के में, LB, BH और HL। इफ वी टॉक अबाउट क्यूबॉइड 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स में बस ये दो ही आते हैं, BH एंड HL, क्योंकि 4 वॉल्स हैं तो 2 BH आएंगे, 2 HL आएंगे। LB ऊपर नीचे होते हैं, तो टोटल में LB आएगा जिसमें ऊपर नीचे लेंगे, जिसमें सिर्फ एरिया 4 वॉल्स है, उसमें सिर्फ BH LH, बस इनको ही ऐड करेंगे। ऐसे कुछ टिप्स अगर आप अपने दिमाग में लॉजिक्स बिठा लो ना, तो इजीली चीजें याद हो जाती हैं। ओके, कोन की बात करें, कोन आपको याद करने वाली चीज है जैसे कि पाई आर एल। और अगर हम सिलेंडर के CSA की बात करें, बहुत आसान होता है, नीचे का ले लो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। नीचे जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर। 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 पाई आर h, दैट इज द CSA ऑफ अ सिलेंडर। सो दिस यू कैन डू इट, 2 पाई आर इंटू h। एंड अगर मैं टोटल की बात करूं, यार ऊपर नीचे के सर्कल को ऐड कर दो, हो गया, इतना टेंशन नहीं लेते। तो सिलेंडर भी हो गया, कोन भी हो गया। कोन में पाई आर एल याद करना है, इसका कोई शॉर्टकट में निकाल नहीं पाई हूं, पाई आर एल, यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, इसमें एच नहीं होता, ये याद रखना, नो एच। देखो टोटल या इसमें एच नहीं होता, याद रखिएगा, तो एच मत डाल देना कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया में। स्फीयर की बात करें, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल, हेमिस्फीयर 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल, 2 हैं, तो इट्स इजी टू रिमेंबर। आगे चलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे सिंपल, सभी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ गया, इन द केस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, खत्म। ठीक है, कोन और सिलेंडर में अपना एक रिश्ता है। सिलेंडर की बात करूं, एरिया ऑफ अ सर्कल, नीचे का एरिया ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट इज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। कोन क्या होता है, 1/3, 1/3 ऑफ एन वॉल्यूम इज is a volume of a cone। स्फीयर में आपको याद करने वाली बात है 4/3, ये आपको रेशो याद करना है। हेमिस्फीयर में तो इसका आधा हो जाएगा 2/3, लेकिन ये 4/3 रेशो याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। बच्चे कहते हैं मैम पाई आर स्क्वायर याद रखना आसान होता है, पाई आर क्यूब नहीं। यू नीड टू रिमेंबर इट्स अ 3 डायमेंशनल थिंग। तो जो 3D होगी ना, उसमें तीनों डायमेंशंस होंगी, लेकिन अगर मैं स्फीयर की बात करूं, एक रेडियस ही होता है, तो रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, सो इट्स 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। सो एक और चीज होती है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। जब एक सिलेंडर ऐसा हो जो मोटा हो, लेकिन उसकी कुछ विड्थ हो। चलिए मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेंसिल, अगर पेंसिल में से अब लेड निकाल दो, तो जो वुड आपके पास बचता है उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो ये बहुत ही आसान होता है, पूरे सिलेंडर में से, बड़े पेंसिल में से लेड वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, आपके पास सिर्फ वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव अ वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, जिसका विड्थ हो, विच हैज सम विड्थ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी नहीं यार, इसके 4 फेसेस होते हैं ना, एक बाहर वाला जिसका कितना होएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, एक अंदर वाला जो कि 2 पाई स्मॉल आर एच, और ये जो रिंग होती है, इस रिंग का क्या एरिया होता है, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बस ये 2 रिंग्स होती है ऊपर नीचे, इनको ऐड कर दिया जाए, यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। तो चलो जी, एक हो गया सफेरिकल शेल। दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। सफेरिकल शेल का एग्जांपल, कोकोनट। हैव यू सीन कोकोनट? कोकोनट में जो वाटर अगर हम निकाल दें, तो बाहर ब्राउन होता है, अंदर व्हाइट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितना नारियल है उसका क्या वॉल्यूम होगा, तो कैसे निकालोगे? पूरे नारियल का वॉल्यूम माइनस वाटर का वॉल्यूम, आपके पास कोकोनट का वॉल्यूम आ जाएगा। सो दैट इज, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ऐसे याद नहीं होता, ऐसे याद होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। चलो जी, सो प्लीज लाइक माई सेशन डियर। अगर आपको सच्ची में पसंद आया ना, तो लाइक कर दो जरा भी फटाफट से। चलिए मैं आपको बोलूंगी शेयर सब्सक्राइब मत करो, छोड़ो, लाइक कर दो बस, ठीक है।
चलिए जी, नाउ वी आर लेफ्ट विद द प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। प्रोबेबिलिटी का भैया एक ही फॉर्मूला है, जो चीज तुमको चाहिए उसका नंबर रखो ऊपर, जो चीज तुम्हारे पास टोटल है उसको रखो नीचे, दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी, बस उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देखें जरा, सो प्रोबेबिलिटी में ये तो कुछ टर्म्स हैं, मुझे लगता है इसको रिवाइज कराने की जरूरत है, आप पूरा सेशन मतलब प्रोबेबिलिटी का देखना, वी जस्ट हैव अ 2 सेशन, तो उसमें आप देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो आपको चाहिए, जैसे कि कॉइन टॉस क्या हेड चाहिए, तो हेड कितने आएंगे 1, टोटल क्या हेड एंड टेल, तो 1/2 आ गया। और ये रेशो हमेशा 1 से क्या होती है छोटी, और 0 से क्या होती है बड़ी। क्या ये 0 भी हो सकती है? हाँ जी, ये 0 भी हो सकती है। क्या ये 1 भी हो सकती है? हाँ जी, ये 1 भी इधर नहीं है, लेकिन वैसे जो प्रोबेबिलिटी है दैट कैन बी इक्वल टू 0 एंड दैट कैन बी इक्वल टू 1। हाउ? सुनो, आपने किया डाइस को रोल, ठीक है, डाइस को रोल किया, तो बेटा आपके सामने आए 6 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6, मैं पूछूं बेटा 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको क्या अजीब बेवकूफ है? या डाइस को रोल किया, 10 कैसे आ सकता है, डाइस के ऊपर तो 10 होता ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल टू 0 इन सम केसेस, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल टू 1। आपने किया कॉइन को टॉस, मैंने कहा हेड एंड टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने कहा वो तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हेड या टेल तो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी के सर्टेन आनी आनी है, तो दैट मीन्स 1। सर्टेन प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बस यही है, 0 और 1 के बीच में होता है। ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 2 प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो सर्टेन इवेंट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें उस सेम एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि रोलिंग अ डाइस या टॉसिंग अ कॉइन, ऐड करोगे इट ऑलवेज गिव्स यू 1। ओके, थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन किड्स, आई होप आपको ये हेल्प करे इन योर एग्जामिनेशन डेज। तब मैं सिर्फ ये होप करूंगी कि आपको एग्जाम्स में कोई भी फॉर्मूला याद ना भूले। इस वीडियो को अच्छे से देखो, मेरे साथ सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो, यू आर गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स माय डियर किड्स। चलो जी, बाय शाय, चला।